کہ یہاں پہ جو حقوق مانگے جا رہے ہیں وہ کون سے حقوق ہیں, کس ٹائپ کے حقوق؟ وہ آپ سن رہے ہیں, میں بھی سن رہی ہوں, دونوں یہاں کھڑے ہوئے تقریریں سن رہے آپ ہیں. یہاں پہ آئی ہوئی ہیں, بتا دینا. میں تو اپنے خیبر پختونخوا کو پریزنٹ کر رہی ہوں, تو میں ریپریزنٹ کر رہی ہوں, تو میں تو اس لحاظ سے بات کر سکتی ہوں. باقی مجھے نہیں پتا کہ ہر کلاس, پہلی لوور مڈل کلاس جو ہے ان کے مختلف حقوق مانگ رہی ہے. جو میرا جسم میری نہیں تو یا نہیں. الرحمن الرحیم, السلام علیکم. میں ثاقب شفیق اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ناظرین, اس وقت ہم ڈی چوک کے اندر موجود ہیں اور آج عورت مارچ ہو رہا ہے. 8 مارچ ہے اور 8 مارچ کو عورت مارچ ہو رہا ہے. پوری دنیا میں وومن ڈے منایا جا رہا ہے اور وومن ڈے کی مناسبت سے آج یہاں آپ کے سامنے عورت مارچ ہو رہا ہے. آئیے اس عوام سے جانتے ہیں کہ کیا یہ عورت مارچ صحیح ہے یا درست ہے, اور کیا یہ جو حقوق مانگے جا رہے ہیں کیا ہمارے دین میں وہ حقوق عورتوں کو دیے گئے ہیں. ناظرین, عورت مارچ کے اندر ایک خواتین موجود ہے جنہوں نے پشتو کے اندر یہ کچھ لکھا ہوا ہے. ان سے پوچھتے ہیں پہلے کہ یہ کیا ہے. آپ اس کا مطلب بتائیے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر لڑکوں سے یہ بات پوری ہوئی یا نہیں, لیکن اپنے وطن کی حفاظت جو ہے وہ عورتیں کرتی ہیں. آپ یہاں مارچ کے اندر آئی ہوئی ہیں. یہاں تھوڑی دیر پہلے نعرے لگے, میرا جسم میری مرضی. ہمارے معاشرے میں اس کی انٹرپریٹیشن کافی غلط ہوتی ہے, تو آپ اس کی تشریح کر دیں گی کہ اس کی تشریح کیا ہے, ایکچوئل میں اس کا میننگ کیا ہے؟ پشتو میں ایک مصرع میں کہوں گی جس کا مطلب ہے واق صورت زما واق یہ دبل دے. مطلب میرا جسم ہے, میرا وہ ہے, لیکن اختیار کسی اور کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فورس میریجز ہوتی ہے, جو آنر کلنگز ہوتی ہیں یا جو ریپ ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جو یہاں کے مرد ہیں. تو یہاں پہ پچھلی دفعہ سلوگن استعمال کیے گئے عورت مارچ کے اندر, جو میں اس وقت یہاں پہ کہنا مناسب نہیں سمجھتا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ویسے سلوگن ہمارے اس طرح کے آزادی مارچ میں ہونے چاہیے جو سلوگن پہلے وہ سلوگنز بتائیں کہ جن کے آپ خلاف ہے, جن کے خلاف آپ مجھے بلوانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, وہ سلوگن استعمال کیے گئے, اس میں ایک جو سلوگن تھا وہ یہ تھا کہ اپنا کھانا خود گرم کرو, بستر خود گرم کرو, وغیرہ وغیرہ اس طرح سے تھا. تو کیا اس طرح کے سلوگن ہونے چاہیے؟ ہمارے دین کے اندر کیا ہے, کیونکہ ہم مسلمان بھی تو ہیں. اگر آپ اپنا کھانا خود گرم کر لیں گے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, مطلب مجھے اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اچھا, ایک اور بات ہے, یہاں سے حقوق مانگے جا رہے ہیں, تو یہ حقوق کس سے مانگے جا رہے ہیں؟ گورنمنٹ سے مانگے جا رہے ہیں, کس سے مانگے جا رہے ہیں؟ یہ حقوق ان مردوں سے مانگے جا رہے ہیں جو اپنی عورتوں کو کہتے ہیں کہ باہر مت نکلو, مرد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں تم سے زیادہ پتہ ہے. یہاں پہ ہماری خواتین ہیں جو ہمارے لیے مثال ہیں, وہ کام کرتی ہیں, جابس کرتی ہیں. بہت ساری ایسی خواتین ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان کے بارے میں آتا رہتا ہے, بعض ٹیکسی چلا کے بھی اپنا روزگار کماتی ہیں. تو کیا ایسی خواتین اس مارچ کے اندر موجود ہیں؟ یقیناً موجود ہے, یقیناً ہیں. ایسی خواتین اس طرح کے مارچ میں آتی ہیں, جی بالکل شرکت کرتی ہیں. جی. اور ایک اور بات آخر میں مجھے بتا دیجیے گا کہ ہمارے دین نے عورتوں کو بہت زیادہ آزادی دی ہوئی ہے, تو اب یہ اور کس طرح کی آزادی لینی چاہیے؟ یہ وہی دین جو ہے پریکٹیکل مانگ رہی ہے آپ سے. جس دین میں اس کو آزادی دی گئی ہے اور جس اسلام میں اس کو برابر کا حق دیا گیا ہے, وہ پریکٹیکلی آپ سے مانگ رہی ہے. تو حقوق کون سے حقوق ہیں؟ کون سے حقوق ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں یہ دین, یہ سب باتیں موجود ہیں, تو آپ مسلمان ہیں, آپ کو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے. یہاں پہ جو حقوق مانگے جا رہے ہیں وہ کون سے حقوق ہیں, کس ٹائپ کے حقوق؟ وہ آپ سن رہے ہیں, میں بھی سن رہی ہوں, دونوں یہاں کھڑے ہوئے تقریریں سن رہے آپ ہیں. یہاں پہ آئی ہوئی ہیں, بتا دینا. میں تو اپنے خیبر پختونخوا کو پریزنٹ کر رہی ہوں, تو میں ریپریزنٹ کر رہی ہوں, تو میں تو اس لحاظ سے بات کر سکتی ہوں. باقی مجھے نہیں پتا کہ ہر کلاس, پہلی لوور مڈل کلاس جو ہے ان کے مختلف حقوق مانگ رہی ہے. مڈل کلاس والی مختلف مانگ رہی ہے, اور جو ایلیٹ ہے وہ مختلف مانگ رہی ہے. تو یہاں پہ جو اکثر جو خواتین آئی ہوئی ہیں وہ رچ فیملیز سے بلانگ کر رہی ہیں جو نظر آ رہا ہے. تو کیا یہاں پہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس غریب خواتین آئی ہیں جو حقوق, جن کو ایکچوئل میں جن کو حقوق نہیں مل رہے؟
हो सकता है आई हो, और अगर वो लोग नहीं आ सकती तो ये लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर आप कह रहे हैं कि ये उनको गलत रिप्रेजेंट कर रही है तो आप उन्हीं लोकल एरिया में से लोगों को ऊपर उठाएं और उनको यहाँ लाए ताकि वो रिप्रेजेंट करें अपनी औरतों को। मैम आज ये औरत मार्च हो रहा है और यहाँ पे ये नारा लगाया जा रहा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो लोग इंटरप्रिटेशन हमारे जो लोग हैं वो इसकी बड़ी गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो आप बता दीजिएगा इसकी एक्चुअल में तशरीह है क्या? अच्छा, मुझे इस बात पे अभी मैं पहले भी किसी को इंटरव्यू दे रही थी, मैं ये कह रही थी कि ये जो पहला आज़ादी मार्च हुआ था इसमें हज़ारों और सैकड़ों नारे लगे थे। आप लोगों को सिर्फ ये नारा क्यों याद रहता है मर्द हजरात को, मुझे समझ में नहीं आती है। लेकिन आप लोग की अब वो बार बार जो जितना आप लोग चिढ़ेंगे वो चिढ़ाएंगे आपको, वो चिढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब जो है वो ये है कि अगर किसी कोई औरत है, औरत मीन्स के वही बात है, आप हैं, आपका जिस्म है, आप इंसान है ना, आपका जिस्म आपका हिस्सा है, आपकी रूह भी आपका हिस्सा है। आपके ऊपर किसी और की मर्जी नहीं चलनी चाहिए, आपकी अपनी मर्जी चलनी चाहिए, अपनी मर्जी चलनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोई लड़का है उसको हो सकता है कि उस तरह से जिद ना करते हो, लेकिन एक लड़का है वो कहता है कि जी मैं यहाँ से उठ के वहाँ जाना चाहता हूँ, वो चला जाता है, उसके ऊपर रोक टोक नहीं है। उसी तरह से लड़की भी चाहती है कि उसको भी उसी तरह इंसान समझे, उसको भी एक नॉर्मल तरीके से ट्रीट करें, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, उसको हर वक्त अब दूसरों की मर्जी से अपनी ज़िंदगी ना गुजारें। अच्छा एक बात बताइए, ये हुकूक मांगे जा रहे हैं, तो ये हुकूक किससे मांगे जा रहे हैं? क्या मर्दों से मांगे जा रहे हैं, गवर्नमेंट से मांगे जा रहे हैं, या किस से मांगे जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज का दिन जो ये मार्च होता है वो सिर्फ अवेयरनेस के लिए होता है कि औरतों को पता चले कि भाई ये एक इशू है, मर्दों को ये पता चले कि ये इशू है, और डेफिनेटली हुकूमत से तो नहीं मांगा जा रहा है, मर्दों से मांगा जा रहा है, बिकॉज मर्दों ने कंट्रोल किया हुआ है ना औरतों को, तो उन्हीं से कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये तो दिस इज़ वेरी क्लियर। अच्छा, तो ये हुकूक मांगे जा रहे हैं, सब कुछ हमारे मुआशरे में होता है, ये सब कुछ होता है, लेकिन हमारे दीन ने औरतों को खुली आज़ादी भी दी हुई है। आज के दौर में तालीम की आज़ादी है, तमाम जॉब्स भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, तो इसके अलावा और किस तरह के मैं बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ, उसकी दीन ने आज़ादी दी हुई है, लेकिन हमारे जो मर्द हैं वो उस आज़ादी को देते नहीं हैं। वो आप दीन ने कहा विरासत में हिस्सा है, कितने लोगों को विरासत मिलती है, कितनी औरतों को मिलती है, ठीक है, उनको कहते हैं जी जहेज दे के आप फारिग हैं, अब आप ये पैसे लें, ये ज्वेलरी लें और बस, आपको विरासत में से हिस्सा नहीं लिखेंगे। आजकल के ज़माने में भी जो लोगों को आपने खुद देखा होगा आप मीडिया में कि औरतें बाकायदा मिली हैं घरों में बंधी हुई जंजीरों से, जिनको उनके भाइयों ने बंद किया हुआ था सिर्फ इसलिए कि उनको हिस्सा ना देना। तो ये हमारे दीन में तो है ना, तो माशरे में क्यों नहीं है? हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है जो दीन में है, तो उसको हासिल करने के लिए और औरतों के ऊपर जुल्म जो हो रहा है उससे आज़ादी हासिल करने के लिए ये मार्च है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो पिछली दफ़ा जो स्लोगन इस्तेमाल किए गए, तो वो स्लोगन देखे आज भी वो मीडिया के ऊपर, हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वो गर्दिश कर रहे थे, और वो स्लोगन इस वक्त मैं यहाँ पे कहना मुनासिब नहीं समझता, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे स्लोगन लेके इस तरह से हुकूक मांगने चाहिए? कि देखिए, बात ये कि जब मर्द औरतों को सड़क पे छेड़ सकते हैं फजूल बातें, तो औरतें भी थोड़ा सा मर्दों को छेड़ सकती हैं, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। तो अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरे ख्याल में ये इसको एक अच्छे ह्यूमर के तौर पे लेना चाहिए। नहीं तो वो तमाम औरतें जो है बेचारी वापस जाके आज जाएंगी, वापस जाके वो घर का काम भी करेंगी, आप लोगों को खाना भी गर्म करके देंगी, रोटियां भी बनाएंगी, सब कुछ करेंगी, लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा सा आपको याद दिला दिया या थोड़ा सा पिंच कर दिया तो कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी हमारे पाकिस्तान के अंदर खवातीन हैं जो टैक्सियाँ भी चलाती हैं, एक मिसाल हैं हमारे लिए, और जो जॉब्स करती हैं, माएँ हैं, बहनें, कुछ और हैं, तो क्या वो खवातीन यहाँ मौजूद हैं जो मिसाल हैं हमारे लिए, जो एक मिसाल होनी चाहिए, वो इस मार्च में मौजूद हैं? मिसाल क्या है ये पहले बताएं ना, किस किस्म की औरत मिसाल है आपकी? एक खवातीन है, एक वो टैक्सी चलाती हैं और अपने बच्चों का पेट पालती हैं, और एक बेटी है उसको वो पढ़ाती हैं, तो मैं कहता हूँ कि क्या उस तरह की खवातीन की यहाँ पे मौजूदगी है, इस तरह से वो आती हैं और यहाँ पे इन मार्च में शिरकत करती हैं? अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ रिच खवातीन की है या मैं आपको रिच लग रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं एक सेल्फ मेड औरत हूँ, मैं नौकरी करती हूँ,
मेरे पास जो गाड़ी है जो मैं पार्क करके आई हूँ मैंने अपने पैसों से खरीदी है। मैं बहुत अपने अच्छी बच्चों का भी ख्याल रखती हूँ, मैं और काम भी अपने करती हूँ, सारी जिम्मेदारियाँ भी उठाती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि औरतों को एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ औरतों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हैं। तो औरत मार्च के अंदर एक बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। जी चाचा जी बताइएगा। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ये हमारे पाकिस्तान जो है ना, हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना है। ठीक है, हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो ये बोल रहे हैं ये गलत है। गलत है बिल्कुल। माँ बहन को अंदर रहना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है ना, उसके तहत रहना चाहिए। हम लोग मुसलमान हैं, तो ये अगर ऐसे बोलते हैं तो ये गलत बोलते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं किस, होना किस किस तरह के हुकूक मांग रहे हैं? किस तरह के? हैं? ये किस तरह के हुकूक मांग रहे ये हैं? क्या मांग रहे हैं? हुकूक मांग रहे हैं। हुकूक क्या मांग रहे हैं? हुकूक क्या हमें खुली आज़ादी दो, हम फिरें दुपट्टे गलों में डाल के? हाँ, ये गलत है। क्या दीन के अंदर ऐसा है? ये इंडिया नहीं है, ये पाकिस्तान है भाई साहब। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होगा। अगर इनको शौक है तो इंडिया में चले जाएं, वहाँ खुली जाके फिरें। नाज़रीन ये था आज का औरत मार्च, जिसमें आप वीडियो में आपने देखा कि वो ख़वातीन को मालूम ही नहीं था कि उनको किस तरह के हुकूक चाहिए और किससे चाहिए। या नाज़रीन अब आप इस बात का फैसला या ये औरतें करें या इनके घर वाले करें या फिर गवर्नमेंट करे कि इनको हुकूक चाहिए कैसे, आज़ादी चाहिए कैसे और किससे चाहिए। घर वालों से चाहिए, हमसे चाहिए, मर्दों से चाहिए या किसी गवर्नमेंट के किसी इदारे से चाहिए या इमरान खान से चाहिए। इस बात का फ़ैसला आप ही कर सकते हैं, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है कि इनको हुकूक क्या चाहिए। आपने वीडियो में देख चुके हैं। अपने मेज़बान साकिब शफ़ी को इजाज़त दें। ये वीडियो HM न्यूज़ और साकिब शफ़ी के ऑफिशियल पेज के कोलैबोरेशन से बनाई गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।